والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا آمين يا رب العالمين. بجاه سيد المرسلين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. ہزار بار خوشویم دہن سے مجھ کو گلاب، انوس نامے تو افکن کمال بے ادبی. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رجوع. آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بلا تاخیر درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت غواص بحر معرفت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، اے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس عنقریب وقت مغرب ہونے والا ہے اور مجھے اس سے پہلے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محب گرامی وقار پیکر اخلاص و محبت محب العلماء حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مشاہدی حشمتی اور ان کے تمام ہم پلہ ہم نوالا تمام وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے مبارک کو یعنی جشن عید میلاد النبی و اعلیٰ حضرت و مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس کو سجانے میں محنت و مشقت کی. اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس جلسے کو تا حیات حیات اللہ یوں ہی قائم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، چونکہ مجھے بھی ایک بہت اہم موضوع دیا گیا ہے، بڑا ہی اہم عنوان ہے، بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے جسے اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں. آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو الحمدللہ جماعت اہل سنت کا کوئی بھی فرق، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا غیر پڑھا لکھا طبقہ ہو، ہر طبقے کا یہ فرق اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمارا نبی اختیار والا ہے. ذرا محبت سے بولو، ہمارا نبی اختیار والا ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے پاس ڈگری کیا ہے، تو کیسے کہتا ہے اختیار والا ہے. کہاں ہمیں بریلی والے نے بتایا، ہمیں بریلی والے نے بتایا ہے، ہمیں پیلی بھیت کے آقا شیر بیشے نے سنت نے بتایا ہے، ہمیں خواجہ نے بتایا ہے، ہمیں بغداد کے مہاراجہ غوث اعظم نے بتایا ہے. ہمارا نبی اختیار والا ہے. اب یہی بولی آگے بڑھے گی تو آپ دوسری طرف جب دیکھیں گے بڑے بڑے جبوں دستار والے بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کر دن رات ان کا مشن کیا ہے؟ دین پھیلانا. کیا مشن ہے؟
पढ़े हुए लोगों को कलमा पढ़ाना, जो लोग कलमा पैदाइशी पढ़कर आए हैं उन्हें कलमा पढ़ाना। मैंने कहा जनाब आपका अकीदा क्या है? तो इनकी एक किताब है जिस किताब का नाम लिखा तो तक़वीतुल ईमान है, लेकिन हम सुन्नी हजरात उसे तफ़वीतुल ईमान कहते हैं, क्योंकि वो ईमान को मजबूती नहीं देती, ईमान को फौत कर देती है। क्या लिखा? नबी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला माज़अल्लाह। जरा एक बार बोलो माज़अल्लाह। नबी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अब आओ जरा ज़हन व फिक्र को हाजिर फरमाओ, इस अकीदे को टैली करते हैं, इस अकीदे को मिलाते हैं। कहां से? वहां से जिन्होंने नबी को देखा है, वहां से जिन्होंने नबी को चलते हुए देखा, जिन्होंने नबी को बैठते हुए देखा, जिन्होंने नबी को खाते हुए देखा, जिन्होंने नबी ने बिस्तरे इस्तराहत पर लेटते हुए देखा, जिन्होंने नबी की शाम भी देखी है, नबी की सुबह भी देखी है, मक्की जिंदगी भी देखी है, मदनी जिंदगी भी देखी है, उनकी बारगाहों में चलते हैं, सहाबा से पूछते हैं क्या आपका भी अकीदा यही है कि नबी इख्तियार वाला नहीं है? क्या आपका भी अकीदा यही है कि नबी कुछ कर नहीं सकता है? क्या आपका भी अकीदा यही है कि नबी माज़अल्लाह महज मजबूर है? तो कहते हैं सुनो सुनो, ये और किसी का नबी होगा जो महज मजबूर होगा, ये और किसी का नबी होगा जो बेइख्तियार होगा, ये और किसी का नबी होगा जिसके अंदर कोई पावर नहीं होगा। अरे सुनो सुनो, नबी कहते ही उसी को है जो पावर वाला होता है, नबी कहते ही उसी को है जो इख्तियार वाला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक किसी सहाबी का अकीदा ये नहीं है कि नबी बेइख्तियार है। हर सहाबी यही कहता है अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फज़ल से हमारा नबी इख्तियार वाला। थोड़ा कम करना। बिलाल भाई बैठे, मैं देखा हूँ माइक नहीं कहा गालिबन, क्या भाई को नहीं कहा ना बिलाल भाई का, हल्का सा को कम कर देना। मोहब्बतों का शुक्रिया आपका। बहरहाल मेरा नबी इख्तियार वाला है। अब आइए जरा ज़हन फिक्र को हाजिर फरमाइए, चलते चलते आपके उब्दा कुशाई करता हुआ चलता हो, आपके जहन में ये बात डालते हुए चलता हो, ताकि आपके जहन में ये बात उतर जाए कि मौलाना आपने दावा तो कर दिया है, कोई दलील भी तो दोगे, तब तो हम दूसरों को समझा पाएंगे कि हमारा नबी इख्तियार वाला है, तब तो हम लोगों को बता पाएंगे हमारा नबी पावर वाला है। तो आओ जरा देखो तो सही, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखो। इमाम ज़ुरक़ानी है, इमाम ज़ुरक़ानी ने ज़ुरक़ानी शरीफ में नकल फरमाया, एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत मोहम्मद इब्ने हातिब है। क्या है नाम? याद कर लो नाम, हज़रत मोहम्मद इब्ने हातिब। समझ में नहीं आएगा उलमा से राब्ता कर लीजिएगा, ये उलमा मुश्किल कुशाई ही के लिए है कौम की। तो हज़रत मोहम्मद इब्ने हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में एक मर्तबा खौलती हुई हड्डियां मेरे हाथ पर गिर गई, जिससे मेरा हाथ जलकर कोयला हो गया, काम नहीं करता था। मेरी वालिदा मोहतरमा मुअज़्ज़मा मुकर्रमा जब नबी तशरीफ लाए मदीना शरीफ में, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में मुझे लेकर पहुंची, सरकार की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये मेरा बेटा है, बचपन में हड्डियां इसके ऊपर गिर गई थी खौलती हुई, इसका हाथ जल गया, काम नहीं करता है। मैंने कहा एक खातूने मदीना आप ये बता दीजिए, अगर आपको इलाज की जरूरत थी, आपका बेटा मरीज था, उसका हाथ काम नहीं करता था, किसी माहिर तबीब के पास जाना चाहिए था, किसी माहिर हकीम के पास जाना चाहिए था। ये तो नबी है, लोगों को हिदायत देने आए हैं, खुदा का कुरान देने आए हैं, रब का कुरान देने आए हैं, शरीयत की बातें बताने आए हैं। अरे ये डॉक्टर थोड़ी ना है, ये तबीब थोड़ी ना है, ये हकीम थोड़ी ना है, ये मुआलिज थोड़ी ना है। तो कहा सुनो, जो इतना बड़ा हकीम है कि हमारे कुफ्र का इलाज कर सकता है, वो हमारे मर्जों का भी इलाज कर सकता है। एक बात मैं आपको यही ठहर कर अर्ज करना चाहता हूँ, कुफ्र से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। कुफ्र जब किसी दिल में जगह बना लेता है तो उसे खुदा से दूर कर देता है, रसूल से दूर कर देता है, बुजुर्गों से दूर कर देता है, अपनों से दूर कर देता है, जहन्नम से करीब कर देता है, जन्नत से दूर कर देता है। पता ये चला कुफ्र से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। तो जिस नबी ने हमें कुफ्र से दूर कर दिया और खुदा से करीब कर दिया है, हमारा ईमान है कि वो नबी चाहेगा तो ये जिस्मानी मर्ज भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहम्मद इब्ने हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सरकार ने ये नहीं फरमाया किसी हकीम के पास जाओ, किसी तबीब के पास जाओ, किसी मुआलिज के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, बल्कि हुजूर फरमाते हैं मेरे करीब आओ। सरकार के करीब आए, यही वो दस्ते रहमत है। जब हाथ उठता है तो 4 टुकड़े होते हैं, यही वो दस्ते रहमत है। जब हाथ उठता है तो सूरज पलटता है, यही वो दस्ते रहमत है। जब इशारा करते हैं तो पेड़ उखड़ कर आता है, यही वो दस्ते रहमत है। जब इशारा करते हैं तो उंगली की खाइयों से पानी के चश्मे निकलते हैं, यही वो दस्ते रहमत है कि जिस हाथ को जहां मेरे नबी फेंक देते हैं कयामत तक के लिए वो चीज तबर्रुक हो जाती है। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को मोहम्मद इब्ने हातिब के जिस्म पर यानी उस हिस्से पर फेरा जो हाथ मफलूज हो गया था। सरकार ने जैसे फेरा, हज़रत मोहम्मद इब्ने हातिब कहते हैं, इमाम सुखानी का बयान है, वो कहते हैं कि हुजूर का हाथ फेरना था, पता ही नहीं चलता था कभी ये चले थे। अल्लाह का फजल है, उनका हाथ पहले से बहुत खूबसूरत हो गया था, पहले से बहुत अच्छा हो गया था। तभी तो हम कहते हैं अरे वो तुम्हारा नबी होगा जो बेइख्तियार है। हमें तो बरेली वाले ने अकीदा दिया है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने आला हजरत, शाने मजहरे आला हजरत। अच्छा भाई, एक और रवायत में पेश करता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई तमहीद नहीं, कोई बीच में मिसाल नहीं। एक रवायत और सुने। इस रवायत को हजरत इब्ने असाकिर ने हजरत इब्ने साद से रवायत। इब्ने साद बयान करते हैं, ये किससे रवायत करते हैं? हजरत अमर बिन शोएब से। हजरत अमर बिन शोएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं। क्या कहते हैं कि एक मकाम है मक्का शरीफ में, जो मकाम सफा के करीब है, मकाम सफा के करीब है, जिस मकाम का नाम मकाम जिल मजाद, मकाम जिल मजाद है। उसी मकाम पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में तशरीफ ले गए। किस जमाने में? जब आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। और आपके साथ कौन? आपके मुशफिक चचा जनाब अबू तालिब। आपके मुशफिक चचा जनाब अबू तालिब ये साथ में थे, क्योंकि साल में एक मर्तबा वहां बहुत बड़ी बाजार लगती थी, बहुत बड़ी मंडी लगती थी, और उस मंडी में हर मुल्क के